Oh, Jai Hind students. So today we are going to start the rest of the question of exercise 6.5. Very important exercise, maxima minima. Now, all the question from 19 to 26, all are different in the nature. Just listen very carefully, understand well. Before I start, those who are new to the channel, subscribe the channel and press the like and bell icon. Okay, problem 19. Show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. This is circle. Okay, and all the rectangles inscribed in a circle. ये रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर है. ओके, जो सर्कल के अंदर है. A, B, C, D. This is diagonal. So now, show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle. So circle is fixed. It means radii is also fixed. The square has the maximum. We have to prove that this is not a rectangle. When it will convert in the square, then this figure will give this one maximum area. This one. So length, breadth is, and this is diagonal. ये diagonal मान लेते हैं. Now, first of all, we have to prove कि this is not a rectangle. This is what? This is a square. So square के लिए क्या होता है? Length और breadth सेम हो जाती हैं. Now, solution. सबसे पहला है ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle, and let A be the area of rectangle with sides with length x and breadth is equal to x unit and breadth is equal to y units. Okay, now find out area is equal to x into y. Now both the variables are x and y of this area. There is no fixed one. कोई भी fixed नहीं है यहाँ पे. So we have to change whether x in y or whether y in x. So we have to use something. Now what is given in the question? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक स्टेटमेंट गिवन होती है, एक प्रूफ करनी होती है. ये प्रूफ करनी है, इसको लेके चलना है और प्रूफ करना है. गिवन स्टेटमेंट क्या है? गिवन स्टेटमेंट ये है, फिक्स्ड सर्कल. नाउ यूज दिस इन ट्राइंगल. देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का. हैव यू अंडरस्टूड पाइथागोरस थ्योरम? D क्या है? डायमीटर है, या डायगोनल और डायमीटर यू कैन से दैट ऑफ सर्कल, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2r. फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. यहां से आप इसकी किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं. फाइंड आउट y स्क्वायर इज इक्वल टू d square minus x square. This is second. To make the question easy, to make the question more simpler, now we have to use this. तो ये स्क्वायर है, तो इस फर्स्ट को भी स्क्वेयरिंग कर लो. स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1
equation 1 both side. So a square is equal to x square y square. अब आप नाम जो है वो कुछ भी दे सकते हैं और ये हमेशा करना है. नाम जो है वो कुछ भी दे सकते हैं. ये एक नेम था a, मैं इसकी जगह कुछ और लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो यू हैव टू चेंज इट. सो मैं इसको z लिख लेता हूं. लेट z. तो a स्क्वायर के बदले क्या आ गया? z आ. नाउ फ्रॉम 2 पुट द वैल्यू x स्क्वायर d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. नाउ d इज फिक्स्ड, डायमीटर इज फिक्स्ड क्योंकि रेडियस फिक्स है. सो ये कांस्टेंट ट्रीट हुआ. नाउ दिस इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल फॉर्म, दैट इज x. नाउ z is equal to x square d square minus x की पावर 4. Differentiate with respect to x to find the first order derivative, so that we will get the critical point. On that critical point we will check whether the area is maximum or minimum. सबसे पहले differentiate with respect to x करते हैं, तो ये बन जाएगा z dash x d square 2x minus 4x का क्यूब. z dash x is equal to put. नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट. पुट दिस इज इक्वल टू 0. 2x d स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x का क्यूब. ये आ गया d स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास x कॉमन आ गया. 0 के इक्वल वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं काट देता हूं इसको. तो ये आ गया d स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x का स्क्वेयर. सो x इज इक्वल टू या x स्क्वेयर इक्वल टू d स्क्वेयर अपॉन 2. इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू d अपॉन रूट 2. माइनस हो नहीं सकता, नहीं तो स्क्वेयर से वैल्यू जब निकलती है तो प्लस और माइनस में होती है. बट हियर इट वॉन्ट बी पॉसिबल बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ नेवर बी नेगेटिव. सो x की वैल्यू आ गई d अपॉन 2. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. Put in equation 2 to find out y, because we have to prove this it is not a rectangle, it is what? It is a square. For that we have to show that x is equal to y. So put in equation 2. तो equation 2 में put करते हैं y square is equal to d square minus d square upon 2, that is d square upon 2. तो y is equal to d upon under root 2. Clear? Now it means x is equal to what? y. So ABCD is a square. ये पहला प्रूफ हो गया. Now we have to prove that कि जो एरिया है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. Now to find out the maximum minimum we have to find out the second order derivative. तो z डबल डैश x, ये z डैश तक करो. 2 d का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर. वैल्यू चेक करो किसकी? एट x इज इक्वल टू d अपॉन रूट 2 पर. 2 d का स्क्वायर माइनस 12 d स्क्वायर अपॉन 2, 6. दिस इज 6 माइनस 4, सॉरी माइनस 4. 2d square minus 6d square minus, so this is negative, it means it is less than 0. So it has maximum area at x is equal to d upon under root 2. And already you got y is equal to d. So both the things you proved. One, it has maximum area. Second, और अगर हमें मैक्सिमम एरिया निकालना भी हो तो वी कैन फाइंड आउट a इज इक्वल टू x की वैल्यू d अपॉन अंडर रूट 2, y की d अपॉन अंडर रूट 2, दैट इज d स्क्वायर अपॉन. दिस इज द मैक्सिमम area of this rectangle which we proved in a square. Pause the video to note down. Now question number 20. Show that the right circular cylinder. तो सिलेंडर कैसा होता है? Like this.
राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface. So surface area is given to you of given surface and maximum volume, and volume you have to prove maximum. Understand the question properly. Here it is given एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ जिसका सरफेस एरिया क्या है, गिवन है, यानी वो फिक्स्ड है, इसका सरफेस एरिया गिवन है, दैट इज कांस्टेंट, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, वो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इज सच दैट इट्स हाइट is equal to the diameter of the base. इसकी जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, डायमीटर ऑफ द बेस. तो अगर ये r है तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r. ओके, सो लेट आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन, डायरेक्टली सॉल्यूशन. लेट r h S and V be the radius, height, surface area, radius, height, surface area, and volume of cylinder, right circular cylinder. So what is given to you, हमें गिवन है कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी गिवन है, इट मींस दैट इज फिक्स्ड. क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, S इज इक्वल टू 2 पाई r का स्क्वायर प्लस 2 पाई RH. क्या होता है, 2 पाई r का स्क्वायर प्लस 2 पाई RH. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. दिस इज गिवन टू यू. One more thing is given, one more thing is there, क्या कि show that, हमें क्या शो करना था ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम था, कि जो हाइट है, ये जो हाइट है, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस. वेदर यू कैन प्रूव h इज इक्वल टू 2r और यू कैन प्रूव h इज इक्वल टू d. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट, और जब हम ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हम क्यों निकालते हैं, टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकाले जाते हैं, जिससे उस पॉइंट पे हमें ये पता लगता है कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा. और जो भी हमें प्रूफ करना होता है, जैसे इसमें ये प्रूफ करना है, दैट वी ऑलवेज प्रूव आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया जाता है, उसी के बाद इसको ये प्रूफ किया जाता है, और वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है इफ यू रिटन द करेक्ट स्टेटमेंट. सो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जिसको मैक्सिमम करना है वो है पाई r स्क्वायर h. नाउ रेडियस एंड हाइट ऑफ वॉल्यूम, टू वेरिएबल्स आर देयर. नाउ वी हैव टू चेंज इन ए सिंगल वेरिएबल फॉर्म. सो सबसे इजी यही होगा, r की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1. h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r. पुट हियर, सो ये सेकंड है, पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड. सो v की वैल्यू कितनी आ गई, पाई r स्क्वायर s माइनस 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r. पाई से पाई कैंसल, r से r कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट नाउ, v इज इक्वल टू एस आर, 2 बाहर ले लेते हैं, एस आर माइनस 2 पाई r. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. क्यों, क्योंकि जिसको हमें डिफरेंशिएट करना था उसमें 2 वेरिएबल थे. नाउ एक को रिमूव किया है हमने एक फिक्स्ड फॉर्म में, तो दूसरा वेरिएबल जो है यहां पे है, और यही एक वेरिएबल बचा है नाउ. तो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. सो v डैश r,
आप dv अपॉन dr भी लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू, v डैश r. सो नाउ v डैश r क्या आ जाएगा, हाफ s है, r की 1 माइनस 6 पाई r स्क्वेयर. ओके, पुट v डैश r इज इक्वल टू 0, हाफ s माइनस 6 पाई r स्क्वेयर इक्वल टू 0. ये 0 हो गया, s की वैल्यू आ गई 6 पाई r स्क्वेयर. अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ s, क्योंकि s तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक फिक्स्ड सरफेस एरिया है, उसकी वैल्यू है. सो वही वैल्यू हम पुट करने लगे हैं, 2 पाई r स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वेयर. इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर. कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल, एक r से एक r कैंसल, h इज इक्वल टू 2r. This only you have to prove. So if you are writing the correct statement and your solution, the way you are representing the solution and your format and each and everything, if it is correct, then definitely you will get the answer. Now, to find out the maximum, we have to show also that this is, volume is maximum. To find out now second order derivative, v double dash r. क्या आ जाएगा, हाफ s का कितना 0 माइनस 12 पाई r, v डबल डैश r. r की क्या वैल्यू है, h बाय 2. तो अगर मैं यहां पुट कर देता हूं h बाय 2, फिर भी क्या होगा, नेगेटिव साइन बाहर लगा हुआ है, उसके कारण ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. हाइट पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी, सो लेस देन 0. So it has maximum volume at r is equal to h by 2. And if you want to find out the maximum volume, you can put the value. Otherwise, no need to put. Pause the video to note down. Now come to problem 21. Of all the closed cylinder cans, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कैन है जो सिलेंडर की शेप में है, लाइक दिस. ओके, तो इसकी हाइट भी होगी, रेडियस भी होगा. नाउ जिसका वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कैन या सिलेंडर. सो वॉल्यूम दैट इज V ऑफ कैन is equal to 100 cubic centimeter. Okay, find the dimension of the can which has minimum surface area. We have to find out the dimension of a can and we have to prove that the surface area of a can is what, minimum. Whenever surface area is written only, then we have to see only total surface area. In case of curved surface area, that will be there in your question if they ask. Otherwise, you have to treat only surface area to total surface area. So we have to prove the surface area minimum. किसका, कैन का. Volume is given to you. So let us take. तो ये fixed है क्योंकि इसकी वैल्यू given है. So let R H and S be the surface area, be the radius, height and surface area of cone, जो कि किसकी, कैन, नॉट कोन, कैन, जो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में. ओके, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. ओके, नाउ वॉल्यूम इज गिवन टू यू
सो मैं लिख लेता हूं V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दैट इज पाई r square h, that is equal to 100. What is the formula of surface area? S is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. Again r square की वैल्यू निकालने से अच्छा है फाइंड आउट h. दैट इज सिंपल. सो h को मैं लिख सकता हूं 100 अपॉन पाई r स्क्वेयर. So S is equal to 2 pi r square plus 2 pi r into 100 upon pi r square to make in one variable form. तो इसको मैं एक वेरिएबल में ले आया. अब काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया. सो S कितना आ गया? 2 pi r square is equal to 200 upon r. So plus. Now differentiate with respect to r. So differentiate with respect to r. So h dash r is equal to, ये बना 4 pi r plus 200 कांस्टेंट है, 1 अपॉन r की करेंगे कितनी आ जाएगी? माइनस 1 अपॉन r स्क्वेयर. सो ये बन जाएगा माइनस 200 अपॉन r स्क्वेयर. वेरी सिंपल. नाउ put h dash r is equal to 0. 4 pi r is equal to 200 upon r square. Cross multiply. 4 pi r cube is equal to 200. 2 4 से ही काटते हैं, 4 1 जा 4 5 50. r cube is equal to 50 upon pi. r is equal to 50 अपॉन पाई की पावर 1 बाय. दिस इज द रेडियस. नाउ हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली. हमें क्या करना था? हमें इसमें क्या निकालना था? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. और हमें निकालना था इसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन. अब कैन में क्या क्या था? हाइट थी और रेडियस. तो रेडियस आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाइट. अब हाइट की वैल्यू यहां से आएगी. पुट हियर h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई. r की वैल्यू कितनी है? 50 अपॉन पाई की पावर 1 बाय 3. स्क्वायर लगा हुआ है 2 बाय 3. h इज इक्वल टू 100 अपॉन, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट. 1 माइनस 2 बाय 3 कितना आएगा? 1 बाय 3. तो पाई की पावर कितनी आ गई? 1 बाय 3. 50 की पावर कितनी है? 2 बाय 3. कैन आई राइट लाइक दिस? 2 इंटू 50 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. बेस सेम हो डिवाइड में, यहां 50 की पावर 1 है, नीचे 2 बाय 3 है. 1 माइनस 2 बाय 3 दैट इज अगेन 1 बाय 3. नीचे आ गया पाई 1 बाय 3. सो h कितना आ गया? 2 इंटू 50 अपॉन पाई 1 बाय 3. सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस कैन. क्लियर? नाउ वी हैव टू शो सरफेस एरिया मिनिमम. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हमें अब क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. किसका? इसका. सो ये आ जाएगा s डबल डैश r is equal to 4 pi minus 200 1 upon r square. तो r square ऊपर गया तो r की पावर -2 हो गया. पावर नीचे आई, पावर में एक कम हो गया. नाउ कैन आई राइट -2 upon r क्यूब? तो ये हो जाएगा प्लस 2 upon r क्यूब. रेडियस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. रेडियस यहां पे क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है. ओके और वैसे तो ये पॉजिटिव ही होता है. नाउ 4 पाई, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव है. 400 अपॉन आर की वैल्यू 50 अपॉन पाई. 3 बाहर 1 बाय 3 कैंसिल आउट. ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं. नो नीड टू डू एनीथिंग.
इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0, सो इट हैज मिनिमम वैल्यू एट r is equal to 50 upon pi 1/3. So like this you can solve this question, very simple, only the calculation part is there. So you need to be very quick and very fast, very sharp in the calculation. Pause the video to note down. Now come to question number 22. A wire of length 28 meter, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 28 मीटर AB, ओके, इज टू कट इनटू 2 पीसेस, ये 2 पीस में कट की गई. वन ऑफ द पीस इज टू मेड इनटू ए स्क्वायर. तो अगर इसको मैं x मान लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 28 माइनस x. 2 पीस में कट की गई, यहां से काट देते हैं, टोटल 28 है, इतनी x होगी, काट देते 28 माइनस x आ गया. नाउ एंड द अदर इनटू ए सर्कल, जो हमने 2 पीस काटे, एक से हमने क्या बनाया, स्क्वायर, एक से हमने क्या बनाया, स्क्वायर, उस वायर से. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वायर थी इससे हमने स्क्वायर बनाया, तो वो x क्या है, x इसका पेरीमीटर है, क्योंकि इसी वायर से तो स्क्वायर बनाया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर. फिर दूसरी वायर से क्या बनाया, सर्कल, तो ये क्या हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज कितना आया सरकमफ्रेंस सर्कल, 28 माइनस एक्स. उल्टा भी कर सकते हैं, x इसको मान सकते हैं इसको, दैट इज अप टू यू. नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया of the square and circle is minimum. You have to show that the combined area of the square and circle is minimum. We have to show this thing. Now, सबसे पहले हमने इसको 2 पीस में कट किया, so let the 2 pieces are, let the length of 2 pieces are x and 28 minus x, okay, and length x will convert in square and 28 minus x length is convert in circle. So according to the question, perimeter of square is equal to x meter. Then second, circumference of circle is equal to 28 minus x. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड. तो हम इसकी साइड को क्या मान लेते हैं, किसकी, स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं a, ठीक है, और सर्कल का रेडियस r, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, लेट a and r be the side of square and radius of circle. So perimeter of square कितना होता है, 4 into side, that is equal to x. Circumference of circle कितना होता है, 2 pi r, that is equal to 28 minus x. So now we have to show that the combined area, sum of both the areas is minimum. So area of, this is given to you, क्या, let a be the, let s be the sum of area of किसका, स्क्वायर एंड सर्कल. तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
साइड का स्क्वायर ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये होता है किसका, रेडियस हमने लिखी रखा है, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो S इज इक्वल टू, साइड इज गिवन टू यू कितनी है, ए का स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इज फर्स्ट, use this one now so that we can bring this equation in one single variable form. So S is equal to a की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 16, a स्क्वायर की वैल्यू प्लस पाई r, 2 पाई r की वैल्यू है 28 माइनस x, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 माइनस x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। Solve it. S is equal to x square upon 16 plus pi 28 minus x का whole square upon 4 pi square. pi से एक pi cancel हो गया। Now we have to differentiate with respect to x, क्योंकि only x variable is there. So differentiate with respect to x. So x dash x is equal to 2x upon 16 plus 1 upon 4 pi, पावर डाउन, पावर में एक कम, अगेन फंक्शन की दोबारा से -1, क्लियर, 2 से 2 कैंसल, 2 से 8, तो x डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन 8 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 28 माइनस x अपॉन 2 पाई, पुट h डैश x इज इक्वल टू 0, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 2 पाई, क्लियर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2x पाई 28 इंटू 8 माइनस 8x, x को यहां ले जाते हैं, 2x पाई प्लस 8x इज इक्वल टू 28 इंटू 8, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, 4 x कॉमन ले लेते हैं, इट इज 4 प्लस पाई, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 8 4 जा 32, 3 बचा, 4 2 जा 8, 9 10 11, so now x की वैल्यू कितनी आ गई 112 अपॉन 4 प्लस, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमें लेंथ ऑफ 2 पीसेस निकालनी थी, तो एक पीस की लेंथ कितनी आ गई, दूसरे पीस की कितनी थी 28 माइनस x, तो दैट इज इक्वल टू 28 माइनस 112 अपॉन 4 प्लस पाई, सो ये आ गया 28 मल्टीप्लाई 4 कितना बनेगा, 28 मल्टीप्लाई 4 बनेगा 112, फिर प्लस 28 पाई माइनस 112 अपॉन 4 प्लस पाई, ये कैंसल आउट, ओके, यही बना हमारे पास। x की वैल्यू हमने पुट कर दी जो 112 अपॉन 4 प्लस पाई थी, 28 में से हमें माइनस करना है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 28 इंटू 4 प्लस 28 इंटू पाई माइनस 112, सो ये आ गया 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन फर्स्ट। नाउ इफ यू रिटर्न देन इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, calculation is also very complicated, but if you will have a good calculation in your mind, so you can do it easily। तो एक दोनों पीस की जो लेंथ थी वो आ गई, यहां पे आ गई सेकंड की सेकंड लेंथ और ये फर्स्ट लेंथ। नाउ वी हैव टू शो किसको कि ये मिनिमम होगा, दिस ऑल्सो वी हैव टू शो, सो आ जाओ। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रब दिस वन, दैट्स व्हाई I told you just pause the video and see carefully। So अब हम क्या करते हैं,
सेकंड और डेरिवेटिव निकालते हैं, तो दैट इज एस डबल डैश एक्स। ये x अपॉन 8 है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8, माइनस बाहर आ गया माइनस 1 अपॉन 2 पाई, 28 माइनस एक्स का करेंगे अगेन माइनस 1, सो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई। वी हैव टू चेक व्हेन x इज इक्वल टू कितना निकाला था 112 अपॉन 4 प्लस पाई, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों की दोनों पॉजिटिव टर्म है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सो इट हैज मिनिमम क्या होगा एरिया, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया। So this is your solution. Now, in this video, we only covered problem 19 to problem 22. Only 4 questions. In next video, we will see the next 4 questions. These questions are very important for your examination point of view, for IITs and all. So, just watch carefully this video. Try to solve all the questions of this exercise. Till that, Jai Hind.